Hello, guys. Welcome to the new episode of Dr. Shark's podcast. Today, I am repeating my guest for the first time, who is Mr. Sunny Samanta, my friend from Twitter. We all know that he is a creative person. We all know that he is very talented. But today's podcast is very structured. It is a very short, small podcast about how a person should approach his career in a structured way and how Sunny has progressed from the last time he was on my podcast. Sunny bhai, welcome back to the show. Thank you, Dr. Shark. It's great to be here again. Hmm. I was hoping I'll get to meet you again in like this because last time बहुत मजा आया था. Hopefully आपको भी आया होगा. काफी पक्का. लंबी चली थी हमारी बातें. Hmm. So yeah, it's great to be here again. तो सनी भाई, जब भी लास्ट टाइम आप पॉडकास्ट पे आए थे और आज अभी आप पॉडकास्ट में आए हो, तो आपका करियर में कैसे प्रोग्रेस हुई है? ठीक है, हाउ हैव यू प्रोग्रेस्ड? Okay. Actually, from the last time, we actually talked about things regarding my career, life as a content writer, freelancer, etc., etc. I think I just added new things to my resume, you can say. Right now, I'm also a social media manager. So, means I had plans last time, but then we never touched those things because it was quite in the nascent stage. Even I was not sure about it. कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं. Means I had the interest because it's somewhere it is also a creative field. And so जैसे video editing हो गया, ये सब caption writing हो गया. So it's like an extension of me being a content writer. तो अब मैं उसको visuals way में दिखा रहा हूँ. Like for example, मैं एक video edit कर रहा हूँ. Okay, the client. So it happened so rapidly. After that meeting, I think we spoke in March, I guess, if I remember right. And if April में ही मुझे opportunity मिल गया luckily to work with a client, and she is from our Bollywood industry. Her name was Mohamed Khan. So we kind of there was a show coming, Big Boss Telugu, a few months back. So me and my partner, we started working for her as a campaign manager, and we even everything. So that was a big break to me, starting as a social media manager and promoter also. So yes, from there I think life has turned around for good, and it's scaling, not that high, not that low, but it's scaling. Progress चल रहा है, and that's the best part कि हाँ, life is moving, चल रहा है. पीछे I think I haven't looked back ever since that the last time we spoke about things. तो सनी भाई, आपने जो ये क्लाइंट के साथ आपने जो भी अग्रीमेंट की या किसी भी क्लाइंट के साथ आप फ्यूचर में अग्रीमेंट करोगे, तो आपके हिसाब से विच नेटवर्किंग इज वेरी फ्रूटफुल, ऑनलाइन और ऑफलाइन? I think it quite depends on the situation and हमारे पास option क्या है. Because अब वो लोग जो मैं client थे, she is from Mumbai, her team is from Mumbai, and currently I'm located in far from Mumbai. So obviously offline का ज़्यादा options नहीं थे. So we did all the things, the talking, the negotiations, the contract thing, everything online. So as long as means process सही है, genuine है, dependable है, trustable है, I think it doesn't matter if you are doing it offline or online. ठीक है. So Sunny bhai, now coming back to one of your biggest projects, according to me, is the book that you are writing based on all the characters you have met on Twitter. तो हमें ज़्यादा इस पॉडकास्ट में डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है? सिर्फ ब्रीफ में आप हमें बताओ कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? और क्या आप इस Okay. बुक में हो या नहीं? और जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कैरेक्टर है, ओके, तो उसको उसकी इंस्पिरेशन आपको, आप कैसे एक इंडिविजुअल को देखते हो रियल लाइफ में और उसके अराउंड एक फिक्शनल कैरेक्टर को वीव करते हो, ठीक है? एकदम शॉर्ट आंसर देना, कुछ रिवील मत करना, ठीक है? Obviously, I'm not going to reveal much. And I was waiting for this question, to be honest. हमने last time एक space में तो अब discuss किया था इस बारे में. I told कि कैसे मैं एक concept के साथ आया हूँ.
दैट इज लाइक कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, तो द स्टोरी गोज लाइक A to Z। ऐसा कुछ अभी के लिए आई थिंक स्टैंड बाय टाइटल है। आई माइट चेंज द टाइटल बाय द एंड ऑफ द बुक, तब मैं कैसा होगा, बिकॉज मेरे को कोई आइडिया नहीं वेयर द स्टोरी गोज फ्रॉम वेयर इट इज राइट नाउ। तो आइडिया यही था दैट आई इस काइंड ऑफ लाइक थैंक यू नोट टू ऑल द गुड पीपल्स आई मेट ऑन ट्विटर, जो कहीं ना कहीं कुछ दोस्त बन गए, जैसे आप, विक्रम, सत्यम, देन आयना, एंड देयर आर अदर पीपल्स आई रियली लाइक इंटरेक्टिंग विद। तो सो आई जस्ट थॉट अबाउट डूइंग समथिंग फॉर यू ऑल, कि कैसे करें। तो मैंने उनको एक कैरेक्टर में वीव किया कि इनको एक कैरेक्टर बना देते हैं। मीन्स नाम तो ले ही सकता हो ना, पैटेंटेड नहीं है होपफुली किसी का नाम, बाद में कोई शू मत कर देना। तो ऐसे ही करके लिया, तो हर किसी को रैंडमली, मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं क्या कैरेक्टर दूं। इट जस्ट मैंने उसका नाम सोचा एंड द फर्स्ट सेकंड थिंग दैट केम टू मी वो बन गया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको रिवील किया ये थोड़ा सा, तो लेट मी जस्ट गिव दैट आउट टू द रेस्ट ऑफ द पीपल इफ दे आर इंटरेस्टेड। तो डॉक्टर शार्क मेरे ये उस स्टोरी में ही इज अ थेरापिस्ट, ओके, एंड थेरापिस्ट के रोल कर रहे, एंड देयर आर अदर कैरेक्टर्स। मैं कुछ कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूँ। विक्रम, तो विक्रम के साथ भी एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन हुआ था दैट अभी तक कहानी में इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है। तो मैं उसको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, मैं एज अ एक्टर, एज अ क्रिकेटर, एज अ फिटनेस एंथुजियास्ट, या फिर कैसे। तो ही इज मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग एन एक्टर। तो लेट्स सी, I'll try to give him what he is looking for, but पता नहीं मेरा दिमाग उस समय कैसे चलेगा when his turn comes up। तो देखते हैं। तो वैसे सत्यम होगा, and there's Proma, then Srijana, the famous अच्छा सुनिए ईस्ट वाली TM, and then Aina and Apo obviously, and likewise और दो तीन नाम है, तृप्ति। तो ऐसे काफी से ऐसे 26 लोगों के नाम में लेने वाला हूँ ओके टू, ओके, एंड बस बोल ज्यादा मत सकते हो बताओ। कि देयर विल बी 26 हम्म कैरेक्टर। बस ज्यादा मत बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये सबकी इंडिविजुअल स्टोरी है, अलग अलग चैप्टर्स हैं 26, या इंटरमिंगल्ड है सारी स्टोरीज? या दे आर काइंड ऑफ इंटरमिंगल्ड, मतलब सबके सब एक एक चैप्टर में हर किसी का इंट्रोडक्शन होता है। किसी चैप्टर में दो लोगों का होता है, किसी में सिर्फ एक ही का। तो अल्टीमेटली आई थिंक दे विल बी इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो यस, इट्स इंटरमिंगल्ड। हम्म ओके ओके ओके, चलो चलो, बस बस अभी ज्यादा रिवील नहीं करेंगे इसके बारे में सनी भाई, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट है पॉडकास्ट का। तो इस पॉडकास्ट का लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे नए आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट राइटिंग में, या कंटेंट प्रमोशन में कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे एंथुजियाज्म हो रही है कि यार मैं भी कंटेंट राइटर बन जाऊं, मैं भी कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं, मैं भी सोशल मीडिया का मैनेजर बन जाऊं, बिकॉज आप इस फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रहे हो, ठीक है। मोर देन 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, आप अपना लाइवलीहुड इससे कमाते हो, समझा? हम्म तो आप कौन से ऐसे 3 चीजें या 4 चीजें बच्चों को बोलना चाहोगे? क्योंकि मेरे हिसाब से देखो, प्रमोशन और मैनेजमेंट सिखाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन जहाँ बिल्कुल। पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, मेरे हिसाब से यू कैन नॉट मेक अ पर्सन क्रिएटिव। वो इधर होता है आपके पास गॉड गिफ्ट, या आप नहीं होते हो, ठीक है। हाँ डेफिनेटली, आप वीडियो एडिटिंग स्किल्स सीख सकते हो, आप कीवर्ड्स के साथ खेलना सीख सकते हो, एल्गोरिदम के साथ खेलना सीख सकते हो, आप प्रमोशन सीख सकते हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप मैनेजर भी बन सकते हो, किसी के एडवाइजर बन सकते हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो न्यूबी आ रहा है, 16 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड, ओके, उसको आप कौन से 3 या 4 ऐसे क्या बोलते हैं, सलाह देना चाहोगे, सजेशंस देना चाहोगे कि ये करो तो आप सही पाथ पे इसमें अपना करियर बना सकते हो? Okay. तो आई थिंक टू बिगिन विद मैं ये बोलूंगा, इट्स अ ग्रेट थिंग टू सी द यंगस्टर टेकिंग इंटरेस्ट इन द फील्ड सो अर्ली, बिकॉज बनता भी है, क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज है जो कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं थे।
तो इट्स ग्रेट दे आर मेकिंग यूज ऑफ इट। एंड हाँ, मैं देख रहा हूँ काफी लोग कंटेंट क्रिएशन वगैरह में जा रहे हैं, एंड सम ऑफ आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल बोथ वाइज फाइनेंशियली, एंड उनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी है बहुत तगड़ा है। बट देन आई कैन ऑल्सो सी देयर आर मीडियोकर वंस हु आर जस्ट ग्रेट एट मार्केटिंग देमसेल्व्स। तो इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बाय द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, तो स्किल वाइज यस, यू कैन लर्न अबाउट दो स्किल्स जो रिक्वायर्ड है। एडिटर हो गया, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग कैसे लिखते, कॉपी राइटिंग कैसे लिखते, यू कैन लर्न अबाउट दोज थिंग्स, आराम से सीख सकते हो। बस डेडिकेशन चाहिए, एफर्ट चाहिए, तो इन सब से हो जाएगा। बट देन इफ दे रियली वांट टू परस्यू इट एज अ कैरियर, तो मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा जिनमें वो फोकस कर सकते हैं। नंबर वन, कि बी ब्रेव इनफ टू फेल। मैं ये बोलूंगा, मैं खुद को भी आजकल ये बहुत बोलने लगा हूँ, बिकॉज द रीजन इज कि वंस यू आर ब्रेव इनफ टू फेल ना, तो आप नए नए चीजें ट्राई करने लगते हो। ओके, एंड वंस यू स्टार्ट ट्राइंग न्यू थिंग्स, तो योर माइंड विल जस्ट ओपन अप टू मेनी पॉसिबिलिटीज कि मैं क्या कर सकता हूँ। यू विल गेट टू नो योरसेल्फ बेटर, योर आपका आपका रेंज पता चलेगा, लिमिट्स पता चलेंगे, वेयर यू कैन डू। बिकॉज कंटेंट राइटर के भी बहुत सारे एक्सपेक्ट्स है ना, आप राइटर बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो, तो यू विल गेट टू नो कि मैं कहाँ पे फिट बैठ रहा हूँ, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आपको ये देखना है, आई थिंक द दिस प्रोफेशन डिजर्व्स टू बी रेस्पेक्टेड मच मोर देन इट इज गेटिंग। काफी ट्रोलिंग होते हैं प्रोफेशन के, ये फ्रीलांस राइटर के, अरे ये तो ऐसा ही राइटर है, एंड इवन द क्लाइंट्स डोंट वैल्यू मच इनफ। इसी वजह से अच्छे से पे भी नहीं करते। तो इफ यू आर बिगिनिंग, आई विल जस्ट से forget about what you are getting paid, try to focus on the learning part। आप सीखो, क्या काम सीखो, कैसे करते हो, उसमें उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, क्या सीख सकते हो। जैसे कि कंटेंट राइटिंग, आपको कंटेंट राइटर बनना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, एसईओ के बारे में सीखना पड़ेगा, एंड देन वर्डप्रेस जैसा सीएमएस वगैरह उनके बारे में सीखना पड़ेगा। तो उन चीजों के बारे में सीखो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड वे में, कैसे करना, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, सीटीए कैसे होता है, कॉल टू एक्शन कैसे होता है, कंक्लूजन कैसे होता है, बिकॉज दोस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। कीवर्ड्स चाहिए होते टू गूगल में रैंक करवाने के लिए, क्लाइंट्स पे फॉर दोस थिंग्स। बाकी तो वो लिखने का कोई भी लिख सकता है, बट देन टू हैव दैट पिन पॉइंट्स शोन अप इन द योर वर्क, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये आप सीख सकते हो, वो सारे एसईओ, कीवर्ड्स, रिसर्च सब सीख सकते हो। This brings me to my next point, that is the creativity side of this field. I think yes, some people are very lucky to have that creativity। मैं भी खुद को थोड़ा बहुत मानता हूँ कि मेरे पास है वो ability to imagine things and just create from there। तो I think somewhere we all are creative, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने टैलेंट वाइज। आपका वो क्रिएटिविटी अब काफी खिल के आता है जब आप वो स्टॉक वाले मीम्स डालते हो, so that shows up। तो if someone is really want to be a creative person, तो उनको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे क्रिएटिविटी उनका है। क्योंकि मेरा क्रिएटिविटी दिखता है राइटिंग में, एडिटिंग में दिखता है, इन ये दो चीजों में मेनली दिखता है। बट देन अगर सब लोग ये देख के उसको रेप्लिकेट करना चाहेंगे, इट विल नॉट वर्क। मे बी इन द शॉर्ट टर्म सब बहुत सक्सेस मिलेगा, बट इन द लॉन्ग टर्म खुद ही समझ आ जाएगा दैट यू हैव वेस्टेड योर टाइम जस्ट फॉर फ्यू बक्स। तो आइडेंटिफाई द फील्ड वेयर यू कैन बी क्रिएटिव, और उसको उसको लेके आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। तो सनी भाई, थैंक यू सो मच अगेन फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्मेट रखा था ताकि छोटे 3 क्वेश्चन में मैं गेस्ट से जान सकूं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, उनकी लाइफ में कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। और सोसाइटी को इम्प्रूव करने का एक तरीका ये भी है कि आप यंग जनरेशन को कभी मिसगाइड मत करो और उनको सही रास्ता दिखाओ। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आप बताओ, थोर देखने जा रहे हो कि नहीं आज? यस, जा रहा हो, ये 150 का शो है,
Hmm. तो अभी ये जैसे ये पॉडकास्ट एंड होगा, आई जस्ट गेट रेडी फॉर द मूवी एंड जस्ट विल गो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Hmm. काफी टाइम से वेट कर रहा था। अच्छे, आपने आपने में भी शायद देख लिया ऑलरेडी। नहीं देखा है अभी तक। विल टॉक अबाउट द, नहीं देखा, यस, देन नहीं। देख लो, देन विल टॉक अबाउट इट, विल डिस्कस अबाउट। आई थिंक द मूवी इज मेड रियली नाइस, जितना रिव्यूज देखने को मिला। Hmm. टाइका वाइटिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स एंड तो ऑब्वियसली देखना ही है मेरे को। आई लव दैट द काइंड ऑफ वो ह्यूमर यूज करता है। आई एम वेरी फाइंड ऑफ ह्यूमर एंड ऑल। तो ये रहा थोर का। एंड बाकी आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी द फर्स्ट रिपीट podcast guest on your channel. Really, it's been an honor to have known you, to learn things from you, and hopefully we can teach each other a lot more things going forward. And Baki, just for if anyone young or koi bhi interested है just to learn things, if they find it कि हाँ मैं कुछ सिखा सकता हूँ, तो feel free to reach out to me. I am available on each platform, Twitter, Instagram, Facebook. So you can just and we can discuss thing. मुझे कुछ दिन पहले एक लड़के ने कॉल किया था and we talked about things and उसके response सुनकर मुझे बहुत अच्छे लगे. He is Satyam. And तो मुझे curiosity interest करता है. So if you are curious enough, then you can always reach out to me. Yes, so guys, we will be running Sunny Bhai's credentials in the final edits. When the video will end, I will display all the credentials. You can connect with him. And even if you have learned 10 to 20% from this podcast, so do like, subscribe, and share. Sunny Bhai,